सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਕਾਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਅਪॉन 2 ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ ਥਿਊਰਮ ਵੈਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਕਾਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਐਸ ਟੀ ਕਾਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ। ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਵੋ ਉਰੇ ਚਾਰ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਐਸ ਟੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 1/2 ਪਾਈ ਦਾ ਰੂਟ ਪਾ ਲਓ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਐਸ ਟੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ 1/2 ਪਾਈ ਦਾ ਰੂਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਪਲਸ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਅਪॉन 2 ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ। ਜਸਟ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਪਲਸ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਇਓਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਅਪॉन 2 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀਤਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਐਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਐਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਐਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਥਿਊਰਮ ਸੌਖੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੋਡੂਲਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਹੋਰ 4 ਪਾਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਅਤੇ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਕਾਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਆਫ ਟੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਪਲਸ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। ਫਿਰ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਸ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਟੀ। ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਐਸ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੀਜਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਲੈਮਡਾ ਟੀ ਐਫ ਆਫ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਇਹਦੀ ਕੋਸਾਈਨ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਪॉन 2 ਆ ਜਾਏਗਾ।
एक प्रूफ करांगे, प्रूफ तो आइडिया हो जाएगा कि उरे कोसाइन क्यों आया। चौथा हैगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन लैम्डा टी एफ टी। ये आऊगा फोरियर साइन एस प्लस लैम्डा प्लस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करके ਜਿਹੜਾ आंसर आया एस माइनस लैम्डा अपॉन 2। इतने माइनस आऊगा सर, बाकी ठीक है। जो प्रूफ देखते हैं आप, मैं तीजा प्रूफ करवाना है जी। तीसरा प्रूफ देखो, स्टेटमेंट दिता की होया इन्होंने देख लियो, थोड़ा जिहा ध्यान रखना। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये मन्निया है, इनू मन्निया है, ये कन्फ्यूज ना हो जियो। ये एफ सिंबल पाया उन्हें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वास्ते, ये एफ सिंबल पाया है कि आंसर जेड़ा कोसाइन हैगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये एफ सी एस। स्टेटमेंट बुक च इदा भाई मैं इदा पाती, अदरवाइज पहला आप किया ये कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते जी सिंबल ज़्यादा वधिया कि कन्फ्यूज नहीं होंदा। ये एफ फोरियर वास्ते पाया तो जो आंसर आया है उसे जी सिंबल पाता अपन, पर जिमें स्टेटमेंट बुक च हैगी मैं उदा कर रहा है जी, ये ध्यान रखना सिंबल का। जो ये प्रूफ करवा रहे हैं पहले आह तीसरा, बाकी सारे प्रूफ पे तुसी आप ही देख लियो। तो देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन लैम्डा टी एफ ऑफ टी, ये होगा 0 to इन्फिनिटी। साइन वास्ते की होंदा हैगा, जिवें साइन लैम्डा टी एफ ऑफ टी है, इदा कह लो साइन एस टी ना मल्टीप्लाई करना होंदा, जिहदा आपां ने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना है जी। हुण इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया, 2 नाल डिवाइड करता, 2 साइन ए साइन बी, ये हुंदा हैगा जी कॉस, पहला ए माइनस बी टी कॉमन कढ़ लिया, माइनस कॉस ए प्लस बी टी कॉमन कढ़ लिया, एफ ऑफ टी डी टी 0 to इन्फिनिटी। मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन गली गली कर ली अपने, मुझे समझ आ गया होवे। ये आ गया कॉस एस माइनस लैम्डा टी एफ टी डी टी माइनस 0 to इन्फिनिटी कॉस एस प्लस लैम्डा एफ टी डी टी। तो हुण आ लिख रहे हैं, ये है कि है इसका मतलब हो गया कि 0 to इन्फिनिटी कॉस एस टी एफ टी डी टी, ये एफ सी एस बराबर एस वास्ते और एस आ गया, तो इत्थे की अपने को सारी सेम चीज़ है, बस एस की थां ते एस माइनस लैम्डा है, तो उधर एस की थां ते एस माइनस लैम्डा आ जाएगा, एफ सी एस माइनस लैम्डा, ए एफ सी एस प्लस लैम्डा, ये अपना आंसर है। बाकी पार्ट तुसीं आप ट्राई कर लियो ये। अगे करनी है अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला भी आई हुई अपन ये करनी है अपने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले लैपलेस वास्ते हुई इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म चाहिए सी फोरियर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जी। हुणे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जी हैगी है फोरियर ट्रांसफॉर्म वास्ते आ रही है, इसका प्रूफ ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट तो याद करनी है। ये स्टेटमेंट दे लो, स्टेटमेंट की फिर थ्योरम का प्रूफ करांगे आप। ये स्टेटमेंट हैगी है प्रूफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी जी टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज फोरियर एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कॉन्वोल्यूट जी या एफ स्टार जी या एफ कॉन्वोल्यूट जी इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी।
तो देखो पिछले दे कंपैरेटिव जो यूनिवर्सल लैपलिस्ट की सी आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वो कंपैरेटिव सौखा प्रूफ आ। पहला डिफाइन करते हैं कि एफ टी स्टार जी टी ਜਾਂ एफ स्टार जी ਜਾਂ एफ कॉन्वोल्यूट जी ये ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ -∞ to ∞ एफ ऑफ u g of t minus u du ये इंटैगरल ਨੂੰ ਆਪਾਂ कॉन्वोल्यूट कहने हैं। यही गल ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ है। तो देखो हुणे की प्रूव करना ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आपने प्रूव करना हैगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी इज़ इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी ये चीज़ शो करनी है अपन। तो इतों प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहला लिखांगे अपन कि अपन पता है कि एफ स्टार जी या एफ कॉन्वोल्यूट जी हुंदा की है -∞ to ∞ एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो यदा फोरियर ट्रांसफॉर्म किया एफ स्टार जी ये की होंदा 0 -∞ to ∞ ई दी पावर आयोटा एस टी इंटू एफ स्टार जी डी टी ये जी इंटैगरल हैगी आ ये इंटीग्रेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कहने हुण इहदी वैल्यू भर दें आप। ये आ गया -∞ to ∞ ई दी पावर आयोटा एस टी -∞ to ∞ एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू ये आ गया। नाल डी टी भी सीगा। हुण इंटीग्रेशन आप दोनों इकट्ठियां कर लिया ये टर्म चक के अंदर लै गए ये आ गया -∞ to ∞ -∞ to ∞ ई दी पावर आयोटा एस टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। बाकी जिस तरह मर्जी कर लो दोनों गल्लां सही ने। दोनों लिमिटां इंटीग्रेशन ये भी यू दी लिमिट भी -∞ to ∞ आ रही है टी भी -∞ to ∞ आ रही है। दोनों लिमिटां कॉन्सटेंट ने सेम ने इनू फिर आप डी टी डी यू भी कह सकते हैं। फिर की किया आपने पुट किया टी माइनस यू नू आप Z पुट कर लिया ए सॉल्व कर रहे हैं आप तो यू कॉन्सटेंट तो डी टी कितना आऊगा डी Z तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यू प्लस Z। इंटीग्रेशन लिमिटा चेंज करांगे टी -∞ भरांगे Z -∞ आऊगा टी ∞ भरांगे Z ∞ आऊगा। तो ये चीज़ बन गई -∞ to ∞। ये इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू टी हो रही है तो आ कॉन्सटेंट इन्हू बाहर कढ़ लो -∞ to ∞ ई दी पावर आयोटा एस टी की वैल्यू भरती यू प्लस Z ये बन गया जी Z ये बन गया डी Z नाल डी यू हैगा सी। सिंपल पुटिंग की अपन यदी टर्म्स सैपरेट कर लिया जी -∞ to ∞ एफ ऑफ यू -∞ to ∞ ई दी पावर आयोटा एस यू अलग कर लिया ई दी पावर आयोटा एस Z अलग कर लिया जी Z डी Z डी यू। हुण ये टर्म इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू Z हो रही है जो Z नहीं हैगा तो बाहर निकल जूगा -∞ to ∞ एफ यू ई दी पावर आयोटा एस यू -∞ to ∞ ई दी पावर आयोटा एस Z डी Z ते नाल मैं इत्थे डी यू पा लेना। ये भी ध्यान च होवे डबल इंटैगरल किया होया है जे लिमिटां कॉन्सटेंट होण तो इंटीग्रेशन अलग अलग सैपरेट सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। जे लिमिटां कॉन्सटेंट होण तो ये इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर लो ये अलग सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई कर दो ये आंसर आऊगा। हुण गौर नाल देखो ये है कि
जे नहीं समझा मैं लिख रहा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ यू ਇਹਦਾ फॉर्मूला की होगा एफ टी लै लो चलो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी ई दी पावर आईटा एस टी एफ टी डी टी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा यही चीज़ नहीं हैगी टी थां ते की आ गया यू आ गया बस कल जिथे टी हैगा वो थां यू आ गया तो की तो भी पता आपको डेफिनेट इंटैगरल के वेरीएबल नहीं मैटर करता टी हो चाहे यू हो कोई फर्क नहीं पैदा है तो इनू आप कह सकते हैं कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है डेफिनेट इंटैगरल वेरीएबल नहीं मैटर करता चाहे यू विच हो चाहे टी हो आंसर सेम होगा हुण ये भी तो यही चीज़ है चाहे जैड विच हो चाहे टी हो कोई फर्क नहीं पैदा है बस ये फर्क आ उरे जी आ गया उरे एफ जे उरे जी आ गया तो इनू की कहांगे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी ये थोड़ा प्रूफ सीगा जी कॉम्बिनेशन थ्रू तो ये पर बेस्ड आप नमैरिकल करने ने यूज़ किमें करांगे नमैरिकल किमें करांगे वो देख लो ये कंसैप्ट आप यूज़ करांगे नमैरिकल दे विच कि आप हुण प्रूव किया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी इज इक्वल टू एफ एस जी एस वेयर एफ ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी एस ये आप प्रूव किया हूँ यूज़ की करांगे आप जिमें इनवर्स लैपिस करते थे उधर जाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल्स टू एफ स्टार जी मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू ये आप नमैरिकल यूज़ करांगे एक नमैरिकल करवाना ਇਹਦਾ नमैरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट ने ये तो वह नमैरिकल करवाने वास्ते एक कंसैप्ट यूज़ होगा काफ़ी ये पहला कंसैप्ट कर रहे हैं ये नोट पा लियो पहला ये पर बेस नमैरिकल करने तो पहला एक कंसैप्ट करना जो एक रिजल्ट करना वो याद रखना आपने और रिजल्ट की है मान लो एफ ऑफ टी ई दी पावर माइनस ए टी टी ग्रेटर दैन जीरो जीरो टी लैस दैन जीरो ਇਹਦਾ फोरियर ट्रांसफॉर्म ਕੱਢਣਾ आपने तो जो रिजल्ट आ वो याद रखना आपने तो देखो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहा था ये आ गया जीरो टू इंफिनिटी आऊगा बाकी नैगेटिव आ ई दी पावर ए टी ई दी पावर आईटा एस टी हो जाएगा जिमें करते आ रहे हैं आप ई दी पावर ए टी पा लेना मैं और प्लस कुछ मैं चेंजिस करनिया ने समझाने वास्ते थोनों आईटा एस प्लस ए टी डी टी यदि इंटीग्रेशन की ई दी पावर आयोटा एस प्लस ए टी अपॉन आयोटा एस प्लस ए जीरो टू इंफिनिटी ये बनेगा ई दी पावर इंफिनिटी माइनस ई दी पावर जीरो अपॉन आयोटा एस प्लस ए जिन्हें पता होगा ना कोई आंसर नहीं आया आंसर क्यों नहीं आया क्योंकि ई दी पावर इंफिनिटी जोड़ा होंगे इंफिनिटी होंगे तो यदा इसका आप जो फोरियर ट्रांसफॉर्म करांगे तो नहीं निकलना फिर करके रहे हैं आप पहली गल चलो माइनस भी लै लीए चाहे मैं माइनस लै लवां इत्थे माइनस आ जाएगा इत्थे माइनस आ जाएगा इत्थे माइनस आ जाएगा फिर वही प्रॉब्लम फिर आ रही है ई दी पावर इंफिनिटी जोड़ा है अपने को इंफिनिटी होंगे आंसर नहीं देना है कोई फिर ये इस केस वास्ते मजबूरी है अपनी कि आप डेफिनेशन आ वाली यूज़ करांगे फोरियर की नैगेटिव वाली इस स्टेटमेंट वास्ते अपनी मजबूरी है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की नैगेटिव वाली डेफिनेशन आप यूज़ करें डेफिनेशन आप जिहड़ी मर्जी यूज़ कर सकते हैं पर इत्थे नैगेटिव वाली यूज़ करांगे की फायदा होगा नैगेटिव वाली जे ऐड करांगे नैगेटिव नैगेटिव बाहर आ जाऊगा इत्थे माइनस आ जाऊगा इत्थे माइनस आ जाएगा जी ये हुण ई दी पावर माइनस इंफिनिटी बन जाएगा जे ई दी पावर माइनस इंफिनिटी जोड़ा होंदा वो जीरो होंदा हैगा
ई दी पावर 0 1 होंदा, नैगेटिव कैंसल हो गया, 1 अपॉन आयोटा एस प्लस ए ਇਹਦਾ आंसर आ गया। ये आंसर है। ई दी पावर माइनस इनफिनिटी 0 हो जाएगा, ई दी पावर 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हुण ये डेफिनेशन ये नैगेटिव वाली लानी मजबूरी हो गई अपनी, क्योंकि जो नैगेटिव वाली डेफिनेशन लावांगे तो ही अपना आंसर होगा। तो ही करके ये रिजल्ट याद ही रख लो। रिजल्ट किवें याद रखना आपां ने, कि इन्हूं उधर ले जाओ कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा एस प्लस ए हुंदा हैगा ई दी पावर माइनस ए टी ग्रेटर दैन 0 0 टी लैस दैन 0। ये फार्मूला होंदा है, याद रखना। चाहे इत्थों आ याद कर लो, चाहे इत्थों जिस समय कर लो। ये रिजल्ट आपां मोस्टली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाले क्वेश्चन यूज़ करांगे। ਜਿਹੜੇ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाले क्वेश्चन ने उन्होंने यूज़ होगा कंसैप्ट। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन है किवें आ, और जो स्पैशल मैंशन किया है उन्होंने कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के ਇਹਦਾ फोरियर इनवर्स कटना है 5 आयोटा एस माइनस एस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये स्पैशल मैंशन किया कि बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड ਇਹਦਾ इनवर्स, ये फाइंड करने वास्ते क्या हम कॉन्वोल्यूशन वास्ते दो फंक्शन बनाने अपने अंदर जिन्हों दोनों का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता हो अपन। चलो फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर बन गए ये 1 अपॉन इन्हें इदा लिख लो 6 प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर एस स्केयर, आयोटा स्केयर माइनस 1 हो जाएगा ना। ये फैक्टर बना लो जिमें बनाने होंगे 6 प्लस जो सीधा कर लो, पहला आ गया आयोटा स्केयर एस स्केयर प्लस 3 आयोटा एस प्लस 2 आयोटा एस प्लस 6। 5 में आप तोड़ लिया, 3 आयोटा एस प्लस 2 आयोटा एस के यह आ गया अपने कोल आयोटा एस कॉमन कढ़ लिया, आयोटा एस प्लस 3 ये चों 2 कॉमन कढ़ लिया, आयोटा एस प्लस 3 ये आ गया 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 3 या 2 कर लो तो आयोटा एस प्लस 3। इन दो पार्ट्स तोड़ लवांगे आप 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 2 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 3। तो देखो फॉर्मूला कितना सी आपां इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल्स टू एफ स्टार जी। तो ये एक नूं एफ एस मान लो, मैं उन्होंने एफ एस मान रहा जी, लैट कर लो एफ ऑफ एस 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 2 तो जी ऑफ एस मान लिया जी 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 3 तो स्मॉल एफ की हैगा एदा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। देयरफॉर एफ ऑफ टी की हो गया इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। ये हमने डिफाइन किया अपन मतलब 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 2 तो एफ टी की हो गया इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया अपने, ये याद रखना जी। ये आ गया ई दी पावर माइनस 2t टी पॉजिटिव 0 टी नैगेटिव। इसी प्रकार जी ऑफ टी कढ़िया अपने, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस आ जाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन आयोटा एस प्लस 3 ये आ गया ई दी पावर माइनस 3t टी पॉजिटिव। चलो ये आ गया। हुण एक स्टैप होर ये इंपॉर्टेंट है तो वैसे मैंटल लैवल का ही है। हुण ला रहे हैं आप इस तो बाद देयर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन
6 + 5 आयोटा एस माइनस एस स्केयर इज इक्वल्स टू 1 ये फैक्टर बनाए सी आपां आयोटा एस +2 आयोटा एस +3 ये किहदे बराबर होगा ये होगा इंटीग्रेशन 0 माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। हुण ये गल ये इंपॉर्टेंट आ मैंटल लैवल की गल कर रहा मैं ये हुण मैंटल लैवल आ कि यह टर्मां किदां बनाउणियां भी नंबरी मान पा के छड़ लो बना के दिखा रहे हैं। देखो एफ ऑफ यू तो सौखे टी नूं यू भर देंगे नाउ एफ ऑफ यू कितना होगा टी की थां ते यू भर देंगे -2u यू ग्रेटर दैन 0 0 यू लैस 0 एफ ऑफ यू निकल गया। हुण यह प्रॉब्लम आ जी ऑफ टी माइनस यू भी कढ़ना अपने जिथे टी हैगा चलो भी काम सौखा लग रहा होगा जिथे टी हैगा जी उत्थे आपां ने टी माइनस यू भरता उरे भी टी माइनस यू भरता जी इत्थे भी आपां ने टी माइनस यू भरता। जिहड़ी मेन गल हैगी आ कि ये दो टर्मां किदां मल्टीप्लाई होणगीਆਂ सो इस डिस्क्रीट विच भी पढ़िया होगा जिहड़ा इस समैस्टर डिस्क्रीट का फस्ट चैप्टर हैगा डिस्क्रीट नूमैरिक फंक्शन जिहदे विच आउंदा हैगा कि आह टर्मां जिहड़ियां हैगियां आपस च मल्टीप्लाई किवें करनियां प्लस किवें करनियां चो नहीं पढ़िया कोई गल नहीं हैगी मैंटल लैवल ही अपना इहनूं लिख लिया आपां ने e दी पावर 3 टी माइनस यू की वैल्यू कढ़ लो यू लैस दैन टी लग गया हूँ पता इत्थों यू उधर लेके जावांगे यू ग्रेटर दैन टी ग्रेटर दैन यू हो गया इन्हूं उल्टा लिया तो यू लैस दैन टी कह सकते चाहे टी ग्रेटर दैन यू कह लो चाहे यू लैस दैन टी कह लो गल तो एक ही है तो ये आ गया 0 यू ग्रेटर दैन टी। हुण ये मल्टीप्लाई किवें होणगे ये 0 तो वड्डे वास्ते वैल्यू है इदां नहीं है कि सीधा इनू इन्ना मल्टीप्लाई कर दोगे ये वैल्यू जिहड़ी हैगी आ ये 0 तो ग्रेटर वास्ते है ये वैल्यू टी तो लैस वास्ते मैं थोड़ी डायग्राम बना रहा समझाने वास्ते तो इदां नंबर लाइन ड्रॉ कर ली एक 0 पा लिया एक टी पा लिया समझियो ध्यान उरे मैं एफ ऑफ यू की वैल्यू पा रहा उपर मैं जी ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू पा रहा ये मैंटल लैवल कोई नवा कंसैप्ट नहीं सारा थोड़ा मैंटल लैवल आ ये सारा तो मैंटल लैवल है कि तुसीं इहनूं किद्दां मल्टीप्लाई करना समझाने वास्ते मैं लिख रहा एफ ऑफ यू की वैल्यू जदों 0 तो लैस आ इधर वैल्यू कितनी है इहदी 0 आ इदां पाना 0 आ 0 तो ग्रेटर वास्ते कितनी वैल्यू आ ई दी पावर -2u ई दी पावर -2u मतलब कि हमेशा ई दी पावर कितनी आ रही है -2u आ रही है ये -2u होगी ये -2u होगी। हुण जी ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू पा रहे हैं जो टी तो लैस आ कितनी वैल्यू आ टी तो लैस किधर होंदा टी है इदां लाइन पार्टीशन कर लेना टी तो लैस इधर होगा तो इधर वैल्यू कितनी है हमेशा ई दी पावर -3t माइनस यू ई दी पावर -3t माइनस यू दो लाला लिख लिया वैल्यूज हमेशा इधरले पासे वैल्यू कितनी हैगी टी तो लैस वास्ते ये वैल्यू तो टी तो ग्रेटर वास्ते कितनी वैल्यू है 0 वैल्यू। हुण पार्टीशन का की फायदा हो गया आपां लैस वास्ते ये वैल्यू लग गई पता कितनी आ ये वैल्यू लग गई पता कितनी है हुण दोनों मल्टीप्लाई कर देवांगे लैस वास्ते 0 तो टी वास्ते ये वैल्यू पता ये वैल्यू पता वो मल्टीप्लाई कर देवांगे टी तो ग्रेटर वास्ते दोनों वैल्यू पता हैगी तो देयरफॉर एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू कितना होगा 3 हिस्से बन गए। हूँ इत्थे सीधा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी होर उपर स्प्लिट किया है टी तो लैस वास्ते आ ये 0 तो ग्रेटर वास्ते तो मल्टीप्लाई नहीं होनी है वैल्यूज ये होर वास्ते डिफाइन किया होर वास्ते डिफाइन किया हुण की हो गया हुण कॉमन लग गया कि लैस वास्ते दोनों वैल्यू पता ने मतलब जदों यू लैस दैन 0 होगा तो दोनों वैल्यू पता आ भी पता फिर तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई करने वास्ते क्या 0 आ जाएगा 0 इंटू कितना आ गया तो आह 0 तो लैके टी तक कितनी वैल्यू आओगी दोनों मल्टीप्लाई करती अपने ई दी पावर -3t माइनस यू तो ई दी पावर -2
तो 0 तो ग्रेटर वास्ते कितनी वैल्यू आएगी, t तो ग्रेटर वास्ते सॉरी, एक 0 आ एक ये मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन गई यदि, इनू मैं इधर लिख रहा, इधर लिख लियो। इस तो बाद स्टैप आऊगा इक्वल टू किन्नी आई है 0, जो लैस दैन 0 है मैं जोड़ लो आपस, ये आऊगा e दी पावर -3t प्लस u, 0 लैस दैन u लैस दैन t, ये 0 हैगा जो u ग्रेटर दैन t। हुण ये वैल्यू लग गई फंक्शन के काम सौखा ही है। हुण इहदी इंटीग्रेशन करनी है -∞ टू इन्फिनिटी, देयरफॉर 1 बिकम्स inverse Fourier transform of 1/6 plus 5 iota s minus s square is equals to 0 to t। हुण इहदी वैल्यू सिर्फ -∞ वास्ते सिर्फ आ लवांगे, बाकियों वास्ते 0 वैल्यू हैगी आ, तो ये सिर्फ -0 to t e दी पावर -3t प्लस u du आ गया। बाकी का इंटीग्रेशन करनी है, ये आ गया e दी पावर 3t प्लस u विद रिस्पैक्ट टू u कर रहे हैं आप 0 to t, पहला t भरिया अपने वो -2t आ गया, फिर 0 भरिया -3t, ये अपना आंसर आ गया। सो ये कंसैप्ट देख लियो ध्यान नाल, तेरे ये नाल दे कुछ क्वेश्चन ने वो ट्राई कर लियो, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो। थैंक यू।